بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو دوستو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے. اب ہم اس کلاس کے اندر پڑھیں گے کہ الف سے لے کے یا تک گزشتہ کلاس کے اندر پڑھ چکے ہیں. اس کے اندر گزشتہ کلاس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ الف سے لے کے یا تک کے حروف کے اندر پور کتنے حروف ہیں اور باریک کتنے حروف ہیں. کل ہم نے اس سبق کو پڑھا تھا. آج ہم اسی سبق کے ساتھ ساتھ آگے حروف کو پہچانے کیسے اور حرف کو ہم ایک ایک حرف کو قرآن میں سمجھے کیسے، اس کے بارے میں آج سبق ہوگا انشاءاللہ تعالی. ایک ایک کر کے آپ کو سمجھ میں آئے گا. پوری ویڈیو دیکھیے. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا، کیونکہ جو بھی کلاسز آئیں گے سب میں پہلے آپ کے یوٹیوب چینل پر پہنچ جائیں گے. اب ہم لکھیں گے یہاں پر الف سے لے کے یا تک کے حروف کو پہچانیں گے. کسے کہتے ہیں؟ یہ ہوا الف، اسے کہتے ہیں الف. الف اس طرح پڑھنا چاہیے. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے اور میں بھی آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا. یہ جو حروف ہے یہاں سے ادا ہو رہا ہے اور اس کے نیچے ایک نقطہ آتا ہے، اسے کہتے ہیں با. صرف بہت آسان ہے، با بہت زیادہ کھینچنا ہے. اور اسے اب الف لکھتے ہیں ایسا اردو میں. یہ الف ہوا اور یہ با، با الف زبر با. یہ ہوا. اسے ہم اس لیے پڑھتے ہیں اس طرح کے پڑھنے کے لیے بہت آسانی ہے. اس پر زبر زیر پیش جب لگائیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ میں آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو یہ جو ہے الف ہوا اور یہ با ہوا. اب اس کے آگے آئے گا تا. سیم اسی طرح. اور اس کے اوپر جو دو نقطے آئیں گے تو دو نقطے جب آئیں گے تو حروف بنے گا تا. اب اس کے بعد ایسا ہی آئے گا، اس پر تین نقطے آئیں گے، ایک دو اور یہ تین نقطے. اور اسے دو نقطے ہوئے اور اس کے ایک نقطہ، اس کا تین نقطے ہوئے. تین نقطے والا جو حروف ہے اسے سا پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ سا. اور اس کے مخرج کی طرف ہم بعد میں جائیں گے. پہلے حرف کو پہچانیں گے کس کس حرف کو کیا کہتے ہیں، اس کے بعد اس کے مخارج کو پڑھیں گے. اب ہوا یہ سا. کیا ہوا؟ سا. ہاں تو میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے. یہ با ہوا اردو کے اندر، یہ ہوا تا، یہ ہوا اس پہ تین نقطے سا. کیونکہ پڑھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے اس لیے قاعدے کے اندر بھی یہی لکھا گیا ہے. اب ہم پڑھیں گے اگلا جو حروف ہے وہ ہے جیم. ہاں اس طرح کیا ہوتا ہے؟ جیم. یہ ایسے نکال کے اسے ایسا بیچ میں ایک نقطہ ہوگا تو یہ جو ہوگا پیٹ کے اندر بولتے ہیں اسے. اگر پیٹ کے اندر ایک نقطہ ہوگا تو یہاں پر لکھا گیا ہے کہ اسے ہم پڑھیں گے جیم. پڑھیں گے کیا پڑھیں گے؟ جیم. اب اس کی اسی طرح آتا ہے اسے، اس پہ کچھ بھی نقطہ نہیں ہے، اسے ہم پڑھیں گے ہا. کیا پڑھیں گے؟ ہا. حلق سے، درمیانی حلق سے ہا پڑھیں گے. اب ہم اس کے آگے لکھیں گے اسی طرح سے. بہت آسان ہے. اب یہ تین حروف سیم تھے. پہلا نقطہ جیم کہلاتا ہے، اس کے بعد بغیر نقطے کے اسے ہا کہتے ہیں، اور اس کے سر کے اوپر جو نقطہ آتا ہے اسے کہتے ہیں خا. کیا کہتے ہیں؟ خا. آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اب ہم ایسے ہی پڑھیں گے. یہ جو حروف ہے کیا ہے؟ دال حروف ہے. اردو کے اندر اسے ایسا لکھتے ہیں دال. یہ کیا حروف ہوا؟ دال. اس میں کھینچنے کے حروف کتنے، نہیں کھینچنے کے حروف کتنے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اب جو حروف ہوئے وہ تین سیم تھے اور یہ سیم تھے. اس کے نیچے کیا ہے؟ نقطہ آیا. اس کے دو نقطے آئے، اس کے بعد تین نقطے، اسے ایک نقطہ آیا، پھر اسے کچھ بھی نقطہ نہیں آیا اور اسے سر کے اوپر ایک نقطہ آیا تو اس کی بنا پہ یہ کہلائے گا خا. اب یہ دال. اب یہ دال کے سیم ٹو سیم اس پر اگر نقطہ آئے گا تو یہ ہوگا کیا؟ دال. اردو میں اسے لکھیں گے ایسا ہی سیم.
ये हुआ दाल। अब जो हरूफ आएगा वो आएगा रा, इस तरह लिखे जाते हैं रा। अब ये रा है, उस पर कुछ नुक्ता नहीं है, उसे पूरा और बारीक का बयान हम आगे पढ़ेंगे। अब ये जो रा है उस पर कुछ नुक्ता नहीं है, ऐसा ही सेम आएगा, उस पर नुक्ता आएगा। रा के बाद जो आएगा हरफ जा, रा जा। अब हम ये तीन, ये हुआ सीन, देखो एक पेट दो और ये तीन, उसके तीन शोशे आते हैं, उसे कहते हैं सीन। सेम इसी तरह का हर्फ आएगा, सेम इसी तरह का हर्फ आएगा और उस पे तीन नुक्ते आएंगे। अब ये ऐसा ही था, फिर उसके बाद सेम हर्फ ऐसा ही आया, उसे सेम हर्फ आया तो यहां पर हम लिखेंगे उसे और पढ़ेंगे शीन। क्या पढ़ेंगे? शीन। ये पहला क्या था? सीन। उसके बाद ये शीन, मेरे साथ आप भी पढ़िए, ये शीन। अब ये देखो इस तरह आएगा सौद, क्या कहते हैं उसे? सौद। सेम इसी तरह का एक हर्फ आएगा और उस पे नुक्ता आएगा। ये क्या हुआ? दौद। ये हुआ सौद, ये हुआ दौद। जुबान की जो करवट है ऊपर के दाढ़ों को लगाना चाहिए, उससे क्या हरफ अदा होता है? दौद अदा होता है। अब ये हरफ देखो सेम सेम, तो उसे हम पढ़ेंगे तो, क्या पढ़ेंगे? मेरे साथ पढ़िए तो। अब ये उसे नुक्ता आएगा, ये हुआ हुरूफ वो, ये सौद और ये बहुत, तो वो यहां पर आएगा ऐसा ही आइन, फिर उस पर नुक्ता आएगा गैन। ये दोनों सेम है, ये आइन ये गैन। फिर उसके बाद आएगा फा, एक नुक्ते वाला जो हुरूफ है वो फा आएगा, थोड़ा ऐसा। ये हुआ फा, उसे हम पढ़ेंगे फा। अब उसके हुरूफ जो आगे आएगा वो आएगा फा और ये कॉफ, ऐसा गोल आएगा, उस पे दो नुक्ते आएंगे। फिर उसके बाद काफ, उसके बाद लाम, मीम, नून, वाव, हा। वाव जो हुरूफ है वाव दोनों होंठों से अदा होता है, और ये जो गोल है वो हा है, और ये हमजा, फिर इसके आगे जो है वो या है, ये या। इस तरह भी आती है, फिर इस तरह भी आती है, ये दो नुक्ते हुए या। फिर टोटल यहां से हम हुरूफ की अगर तादाद को जमा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ये 29 हुरूफ हुए जो अलीफ से लेके या तक के पूरे हुरूफ हुए। ये दोनों सेम है, इसीलिए उसको एक ही में शुमार किया जाएगा, जिसे हमें या कहते हैं। अगर नीचे नुक्ते आएंगे तो भी या होगा, और गोल आएगा तब भी या आएगा। इसके आगे आपको पहचानना है कि कौन सा हुरूफ है। अब अलीफ से लेके या तक के पूरे हुरूफ है, आप भी देखिए। उसे मिटाने से पहले आप सभी हजरात गौर से देखिए, ताकि आगे जो हरफ हैं मैं आपसे सवाल करूंगा, आप कमेंट में बताना। अब मैं सिर्फ लकीर खींचूंगा, उस पर दो नुक्ते लिखूंगा। ये दो नुक्ते हैं वो ता के दो नुक्ते हैं। फिर उसके बाद लकीर खींचूंगा, उसके ऊपर 3 नुक्ते लिखूंगा। ये हुरूफ सा है, क्योंकि वो सा के नुक्ते हैं। हरफ पूरा बना नहीं है, बल्कि मैं आपको नुक्तों की पहचान करा रहा हूं कि नीचे एक नुक्ता आया तो वो कहलाएगा बा, और 2 नुक्ते आएंगे तो वो कहलाएगा ता, और 3 नुक्ते आएंगे तो वो कहलाएगा सा। अब इसी तरह अब ऐसा, उसके एक नुक्ता जो पेट में है वो जीम का है। क्या है?
जीम का। इस तरह पेट के अंदर नुक्ता जो आएगा वो जीम का नुक्ता कहलाएगा। अब जीम हुआ, फिर हा को नुक्ता नहीं आता है, उस पर अगर नुक्ता ऊपर आएगा तो वो कहलाएगा हा। देखो तीन हुरूफ सेम है, ये हुआ, ये हुआ, तीन हम लिखेंगे पहले। हाँ, अब ये तीन हुरूफ सेम है, उसके पेट के अंदर एक नुक्ता दो तो वो क्या होगा? जी हाँ, जीम होगा। ठीक है, अब हम उसे नुक्ता नहीं देंगे तो क्या होगा? हा होगा। अब हम उसे उसके ऊपर एक नुक्ता देंगे तो होगा क्या? हा। देखो कितनी आसान, सिंपल। नीचे एक नुक्ता आएगा, लकीर के नीचे एक नुक्ता आया तो बा होगा, लकीर के ऊपर जो नुक्ता आएगा तो ता होगा, लकीर के ऊपर अगर तीन नुक्ते आए तो वो होगा सा। अब हम उसके पेट के अंदर एक नुक्ता देखेंगे तो जीम, और नहीं नुक्ता होगा तो हा, और उसके ऊपर नुक्ता होगा तो हा। अब देखो एक नुक्ता ऊपर आता है लकीर की, ये किसका हुआ? लकीर के ऊपर का जो नुक्ता है वो हुआ दाल का, क्योंकि दाल पर नुक्ता आता ही नहीं है और रा पर भी नुक्ता नहीं आता है, दाल पर नुक्ता आता है। जो दाल है इस तरह का लिखा जाता है, दाल, दाल पे नुक्ता आया, दाल इस तरह करके ऊपर नुक्ता आएगा तो दाल का नुक्ता कहलाएगा। अब रा का नुक्ता नहीं, जा का नुक्ता आएगा, जा हरफ ऐसा लिखा जाएगा, फिर उस पे नुक्ता आएगा। नुक्ता जब हुरूफ आता है तो वो बन जाता है जा, ये बन जा, उस पे नुक्ता नहीं है वो क्या बनेगा? रा। जब नुक्ता आएगा तो जा। अब ये दाल, दाल तो नुक्ता नहीं है तो क्या बनेगा? दाल, और जब नुक्ता आएगा तो क्या बनेगा? दाल। इसी तरह के हरफ के हमें नुक्तों की पहचान हमें खुद करना है। अब हम रा जा तक पहुंचे, ठीक है, जा जब पहुंचे तो सीन पर नुक्ते नहीं है, शीन पर नुक्ते हैं, तीन नुक्ते आएंगे, सेम आएगा, उसे तीन नुक्ते आए, फिर उसे नुक्ता है नहीं है तो ये होगा सीन। अब हम सौद सेम लिखेंगे, उसे नुक्ता है नहीं है तो उसे क्या पढ़ेंगे? सौद। अब उसे नुक्ता आया तो क्या पढ़ेंगे? दौद। हाँ सेम। अब मैं यहाँ पे लिखो बताऊंगा आपको, ये हुआ सेम हरफ। अब ये पहला वाला हुरूफ है तो, अब दूसरा वाला हुरूफ है वो, क्योंकि यहाँ पर हमें एक नुक्ता दिया तो वो बना दो, ये हुआ सेम। इस पे हम नुक्ता नहीं दिए, अब हम उस पे नुक्ता दिए तो ये क्या बना? गैन। हाँ, अब ये काफ, दो नुक्ते, फा को एक नुक्ता, लाम को नुक्ता नहीं है, मीम को नुक्ता नहीं है, पेट के अंदर इस तरह करके अगर नुक्ता आया तो बनेगा नून। ठीक है, जिस जिस के हुरूफ पर नुक्ते हैं बस उसी को आपको मैं बता रहा हूं। अब या के नुक्ते नीचे ऐसे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे दो नुक्ते आएंगे वो भी या कहलाएगा, और इस तरह का या आएगा वो भी या होगा। दोनों या है, उसमें कोई फर्क नहीं है, सेम एक ही हरफ है, बल्कि लिखने का तरीका अलग है। तो ये नुक्ते वाला हर्फ, नीचे एक नुक्ता, हम नीचे से लेके यहाँ तक के पूरे जितने हुरूफ थे नुक्ते वाले आपको हम बता दिए। तो इसी तरह के नुक्तों की पहचान जो है हम खुद कायदा लेकर, नूरानी कायदा लेकर हम सीख सकते हैं। और जो आज मैं आपको क्लास बताया हूँ, इस क्लास को आप भी अपने खारजी औकात के अंदर उसे पढ़िए और देखिए, नुक्तों की पहचान आप खुद भी कीजिए। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द आप कुरान सीखने वाले बनेंगे। अगर आपकी कुरान सही होगी तो समझ लो कि नमाज सही होगी, और नमाज सही तो आपको समझ लो जन्नत का रास्ता आपके लिए खुला है। भाई और मेरे दोस्तों अजीज़ों, अगर आप इसी तरह की क्लासेस आपको अगर देखना पसंद है और कुरान से मोहब्बत है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो आए तो सब में पहले आपके मोबाइल चैनल तक पहुंच सके। और इसी तरह की क्लासें आगे हम पढ़ेंगे।